यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा जय गोपी वल्लभा गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जन रंगन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण गौर हरि बोल हरि पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की अक्षय तृतीय महामहोत्सव की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः One minute. Hare Krishna. Everybody is comfortable? Okay. So we'd like to welcome each one of you on this auspicious day of Akshay Tritiya. And also I would like to congratulate you for making this decision to come on this day for this satsang program. On Akshay Tritiya, people want to do things which they want to expand in their life, which they don't want to decrease. So you have made this decision to come and take benefit of Sadhu Sangha. So I pray that may Krishna bless you with more and more sadhu sangha on this auspicious occasion of Akshaya Tritiya. So we are today extremely blessed that we have with us His Grace Radhesham Prabhuji. Radhesham Prabhuji is passed out from IIT Mumbai. He was a gold medalist, and it was he came in Krishna consciousness when he was studying in his IITs, and he took up very nicely Krishna consciousness, started preaching in his IIT days, and since then he wrote many books, especially his books, Spirituality for Modern Youth, are very famous. He has written books like Discover Yourself, Your Best Friend, Your Secret Journey, Victory Over Death, and such books. And especially his course, Discover Yourself, has transformed lives of practically lakhs of students around the world. He is one who has revolutionized youth preaching in India and now in Western world also. He is one who started preaching in practically majority of IITs and NITs in India, and thousands of youths are actually very seriously practicing Krishna consciousness under his guidance. Many preachers which you see in Calcutta, actually they came in Krishna consciousness in their college days by inspiration and guidance of His Grace Radhesham Prabhu. So he is also temple president of ISKCON Pune. Mm. He has developed very beautiful community of devotees there, youths, congregation, Prabhujis, Matajis, old people, children, beautiful school for the all the communities there. Also now farm project nearby. So he has been a very inspirational leader, inspiring thousands of devotees in practice of Krishna consciousness, especially for his youth preaching. ISKCON governing body commission GBCs conferred upon him Excellency Award, Global Excellency Award, and also GBCs requested him that he have done wonderful preaching in India and inspired many youths in India. So you can also help in inspiring youths in America. So nowadays, 3 months in a year, he goes to America, where he is doing programs in big universities like Massachusetts Institute of Technology, Stanford, and many others. And practically now, last 4 or 5 years, he has been inspiring many youths in America also to take to this Krishna consciousness. He also does programs in many companies, multinational companies like Google, Microsoft, and all these things. Especially, is very famous for training leaders in character and also how to be exemplary leaders. So his time is extremely precious. Somehow, by inconceivable mercy of Krishna, yesterday he came to Calcutta, and immediately we requested him to uh, give his session, and he agreed. His actual schedules are very busy, morning till night. I have been seeing him last more than 30 years. I was young that time, and still I was not able to catch up with his schedules right from morning 2:30 till night 10 o'clock. And even today, it's very difficult to catch up with his schedules. His energy, his enthusiasm,
in practicing and preaching Krishna consciousness, simply exemplary. So sometimes people ask, what keeps you going on in Krishna consciousness? Actually, when we see exemplary devotees like Radheshyam Prabhu, that is really faith boosting, very inspiring, and that fuels our faith to practice Krishna consciousness. We are feeling extremely honored and grateful, Prabhuji, for your association today. So let us welcome His Grace Radheshyam Prabhu by loudly chanting 3 times. Haribo, Haribo, Haribo. They want to ask English or Hindi? Check with them. Okay. Okay. Sure. Everybody knows Hindi or somebody doesn't know? हिंदी कितने लोगों को आता नहीं है? कितने भक्त हिंदी नहीं जानते? I think No, Radha you have to Raman. ask in English. How many of you don't know Hindi? Okay. How many of you don't know Hindi? I think Radha Raman Pur doesn't know Hindi. Maybe somebody can translate. Arvind Gopal Pro? Or Mataji will translate? Okay. So Mataji will translate. His wife will translate for Prabhuji. Okay. All So others know other, Hindi. बाकी सब लोग No, all everybody- others know all others Hindi. Everybody knows Hindi? Knows Hindi. Other than Radha Raman Prabhu. Okay. Sure. Okay. Fine. They don't need Bengali. Huh? No. Of course, they need Bengali. I need one more translator. Okay. Sorry, my English में introduction दे दिया. Yeah. Hare Krishna. You see, all of us in this world are looking for, सब लोग इस दुनिया में सुख की तलाश में हैं. लेकिन इस दुनिया में देखा जाता है कि जितना इंसान सुख के पीछे भागता हो उतना उसके समस्याएं भी बढ़ते जाते हैं. प्रभुपाद जी अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली नाम के कॉलेज में गए थे. उधर प्रवचन शुरू करने ही वाले थे. एक भारत से आया हुआ एक लड़का खड़ा हुआ. प्रभुपाद जी को पूछा उसने, स्वामी जी आप भगवत गीता लेकर आए हैं इस कॉलेज में? इतना विज्ञान तकनीकी सब में इंसान इतना आगे बढ़ चुका है, आपकी भगवत गीता कौन सुनेगा? ऐसे उसने पूछा. तो प्रभुपाद जी बोले, हाँ आप लोग विज्ञान में और तकनीकी में आगे बढ़ गए, इसलिए तो तुम आए हो, अमेरिका आए हो डॉलर नोट की भीख मांगने के लिए. ऐसे बोले प्रभुपाद जी. और प्रभुपाद जी बोले, मैं तुम जैसे भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ. मैं लोगों के जीवन में कुछ चरित्र, कुछ सुधार की भेंट देने के लिए आया हूँ. मैं अमेरिका में आई हैव कम हियर एज ए गिवर नॉट एज ए टेकर. लेकिन तुम इतने आगे बढ़ चुके हो विज्ञान में तकनीकी में, इसलिए तो तुम भीख मांगने के लिए आए हो, ऐसे बोले. तो उसी कॉलेज में अनेक सुसाइड हुआ, आत्महत्या विद्यार्थियों ने की थी. तो वो लोगों ने ऊपर के रूफ टॉप को बंद कर दिया था, इसलिए ग्लास डाल दिया ऊपर, कोई नहीं जा सकता ऊपर. अभी अगर 100वां माला के ऊपर आपने रूफ को बंद कर दिया तो 99 माला से कूदेंगे वो. क्या बड़ी बात है. अभी IIT मद्रास में 3 महीने के अंदर 4 आत्महत्या हुए हैं. विदिन 3 months 4 सुसाइड्स. तो अगर आधुनिक इंसान बहुत गर्व करता है कि हम पढ़ाई में हम आगे बढ़ चुके हैं, विज्ञान में, तकनीकी के में और मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो उनकी प्रगति का क्या ये लक्षण है कि इंसान आत्महत्या कर रहा है? क्या अगर कोई खुश हो गया कोई व्यक्ति, हाँ, तो वो आत्महत्या क्यों करेगा? विल हैप्पी पर्सन डू सुसाइड और अनहैप्पी पर्सन? उसका मतलब इतने पढ़े लिखे बनने के बाद भी, इतना पैसा कमाने के बाद भी इंसान तृप्त नहीं है. ये हम देख सकते हैं. तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि प्रभुपाद जी ने यही प्रश्न पूछा अमेरिका में, आप लोग इतने पैसा तो आपके पास भरपूर है, बड़े बड़े सड़क हैं, बहुत ऊंचे इमारत हैं, सबके शरीर एकदम खूबसूरत है, आपको कुछ कमी नहीं है भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो,
इतना भौतिक दृष्टिकोण से सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे देश में इतने लोग, इंसान इतने आत्महत्या क्यों करते हैं, इतना घटस्फोट क्यों होता है, इतना मारामारी क्यों होता है, इतना क्रिमिनलिज्म क्यों बढ़ रहा है, गन सेल्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग खुश नहीं हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, इस दुनिया में अगर हम बहुत कसरत करके लाभ, पैसा अर्जित करेंगे, वो पैसा पॉकेट में होने के बावजूद भी हम तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि लाभ का मतलब है लक्ष्मी। लेकिन लाभ को जोड़ना चाहिए शुभ के साथ, शुभ लाभ। शुभ का मतलब है नारायण, लाभ है लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण के साथ में जब पूजा होता है तब हम तृप्त होंगे। इसका मतलब है लक्ष्मी को नारायण की सेवा में जोड़ना चाहिए, तब हम तृप्त हो सकते हैं। नहीं तो पाश्चात्य देश ही नहीं, भारत में भी अगर इंसान जितना भी कमाता हो, लगेगा कि पैसा कम ही पड़ रहा है। जैसे एक टोकरी में पानी डालते जाओ डालते जाओ, टोकरी से पानी निकलता रहता है। आपको लगता है कि अरे पहले हम कमाते थे 60,000, अभी हम कमा रहे हैं 1.5 लाख महीने में, फिर भी कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि लाभ से लोभ उत्पन्न होता है। जितना लाभ प्राप्त होता है उतना ही लोभ बढ़ता है, और लोभ पाप का बाप है। आप देखेंगे जब लोभ होता है, इंसान अनेक पाप कृतियों में लगता है। आप देखेंगे पाप मुफ्त में नहीं मिलता आपको। अगर पाप करना हो किसी को, बहुत खर्चा करना पड़ता है। आपको बता सकता हूँ 5 नुकसान है आपको पाप करने से। मान लीजिए अगर किसी को सिगरेट फूंकना हो, शराब पीना हो, नशा लेना हो, ड्रग्स लेना हो, अवैध संग करना हो, ये सब मुफ्त में नहीं आता। आप देख सकते हैं इसके लिए पैसा खर्चा होता है। पहला है पैसा खर्चा करता है, खर्चा करके खरीदने के बाद शराब पीता है, नशा लेता है, उसके बाद तकलीफ को भुगतना पड़ता है। उससे आने वाले तकलीफ, हर एक के लिए तकलीफ है। शराब पीता है लिवर सिरोसिस, सिगरेट फूंकता है लंग कैंसर, तंबाकू खाता है चाले पड़ जाते हैं, अवैध संग करता है एड्स डिजीज होता है, और अनेक डिजीज ऐसे होते हैं। तो पहला चीज़ तो है खर्चा, पाप करने के लिए। इसका मतलब है पैसा खर्चा करके दुख मांगता है। कितना बड़ा मूर्ख है। हाँ? कोई है इस दुनिया में जाकर 1,000 रुपया दो, जरा दुख दो मुझे, दुकान में जाकर खरीदेंगे? अभी वही कर रहा है वो। हाँ? पाप करने वाले क्यों मूर्ख हैं? इसलिए मूर्ख हैं। तो पैसा देकर, पहला तो पैसा देता है, दूसरा है दुख भोगता है, तीसरा है डॉक्टर के लिए बिल चुकाना पड़ता है, दवाई के लिए, चौथा है पुलिस आ जाता है। कोई ड्रग पेडलिंग करता है, पुलिस आता है। हाँ, कोई शराब पीकर ड्राइविंग करता है, दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट। कोई किसी पर स्त्री के साथ संग जोड़ता है तो उसको कोई शूटिंग कर देता है तो पुलिस आ जाते हैं। आप देखेंगे पाप कृतियों के साथ पुलिस भी जुड़े हुए हैं उसको ठीक करने के लिए। ये चौथा समस्या। पांचवा क्या है? मृत्यु के बाद यमदूत आएंगे उसको उठा कर लेके जाने के लिए, वो पांचवा। तो क्या है 5 चीज पाप से नुकसान? क्या क्या है? पहला क्या बोला? पैसा की खर्चा। दूसरा, हाँ हाँ, दुख होता है, तकलीफ होता है उसको, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ। तीसरा, डॉक्टर की खर्चा। डॉक्टर की बिल छोटा होता है बड़ा होता है? आजकल तो डॉक्टर लोग बोलते हैं जीवन भर हमारे सदस्य रहो। हाँ? आप ही नहीं, परिवार को भी साथ में लाओ, आपके फैमिली फ्रेंड बन जाएंगे, आपके पॉकेट खाली करते रहेंगे। हाँ? तो उनका खर्चा है। चौथा, पुलिस का। पांचवा, तो पाप करने वाले के लिए इतना नुकसान है। अगर आपको भक्ति करना हो तो इसके लिए कितना खर्चा है? जपा बीज के लिए। आजकल आप इस्कॉन मंदिर में, जो अमेरिका में मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि ऐसे अनेक विद्यार्थी आते हैं। आने के बाद मैं पूछता हूँ कौन कौन जपा करने के लिए तैयार है। मैंने पूछा तो 40 लोगों ने हाथ ऊपर किया। तो एक प्रभु जी खड़े होकर बोले कि मैं इनका स्पॉन्सर कर दूंगा जपमाला। तो पूरा जपमाला लेके हमें एक को एक एक दिया, मैं उनको फ्री में मिल गया, मुफ्त में उनको। हाँ, जपमाला और जपा बैग में मिल गया। और मैंने पूछा आप में से कितने लोगों के पास भगवत गीता एज इट इज किताब है? अनेक लोग बोले हमारे पास गोरखपुर प्रेस का है, छोटा है बड़ा है। तो लगभग 80 लोगों के पास नहीं था, 150 लोग आए थे उसमें। तो मैंने बोला 80 लोगों को पॉकेट गीता चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति आया था, खड़ा हो गया, बोला प्रभु जी हम स्पॉन्सर कर देंगे।
तो वो 4 बॉक्स लेकर आया हमारे स्टाफ से। मुझे इतना ही करना पड़ा, उठा उठा कर दिया दिया मैंने हाथ में, बस एक एक भगवद गीता दिया बच्चों को। तो वो बोला कि अमेरिका में आना ही मुश्किल है, ये बच्चे आए हैं अमेरिका तक, तो उनको भगवद गीता देना, माला देना बहुत मुश्किल है। तो वो अमेरिका में पढ़ाई होने के बाद खूब कमाएंगे वो लोग, फिर भी उनको मुफ्त में मिल रहा है। अगर भक्ति करना हो तो जपमाला और भगवद गीता भी आपको मुफ्त में भी मिल सकता है, खर्चा कुछ नहीं है, आपको भक्ति करने के लिए खर्चा कुछ नहीं है। इसके विरुद्ध आपके खर्चा को कम कर देगा भक्ति। क्यों? क्योंकि अगर पाप कृतियों को छोड़ दिया आपने तो खर्चा कट ही जाता है ना। एक विद्यार्थी था पुणे में उन दिनों में 1995 में, उसके पिताजी 5,000 रुपये बेचते थे, वो बड़े धनी खानदान में। उसका इंडिपेंडेंट फ्लैट लेकर दे दिया उनके पिताजी ने। अरे बेटा तुम अकेले ठहरो, विद्यार्थियों के साथ साथ ठहरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा खुद का फ्लैट होगा तुम्हारा। खुद का गाड़ी भी दे दिया, कार में जाता था वो कॉलेज ऐसे। तो उनके पिताजी उन दिनों में 5,000 बेचते थे। वो लड़का बोलता था पिताजी को और 5,000 भेजो, 10,000 बेचते थे महीने उन दिनों में 95 में, इतना खर्चा करता था। और कभी बोलता था पिताजी को और 3-4 हज़ार बेच दीजिए महीने में, क्योंकि बहुत पाप करता था वो, सिगरेट फूंकना, शराब पीना इत्यादि। लेकिन हमारे क्लास में आना शुरू हुआ उसका, उसके बाद वो ही मेरे प्रोग्राम का होस्ट बन गया वो। एक उनके ही रूम में होता था कार्यक्रम, हम जाते थे। तो उसका सब खर्चा कम हो गया, क्योंकि सिगरेट नहीं, नशा नहीं, किसी स्त्री को कुछ नहीं करना, घूमना घामना नहीं है, होटल में नहीं लेके जाना है, सिनेमा में नहीं लेके जाना है, कुछ खर्चा नहीं था उसको, सब खर्चा कट गया उसका। अभी पिताजी को बोला पिताजी अभी 10 मत भेजिए, 5 ही भेजिए, ऐसे लिखा उसने। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बेटा खर्चा कैसे कम कैसे हो रहा है तुम्हारा अभी? वो बोल रहा है क्या करूं, खर्चा हो ही नहीं रहा अभी, बच ही रहा पैसा हमारा, ऐसे बोला उसने। तो पिताजी आ गए पुणे में देखने के लिए, मुझे आकर मिले, बोले कि क्या स्वामी जी इतना चमत्कार कर दिया आपने उसके जीवन में, इतना जिम्मेदार बन गया वो, आजकल पाप में पाप भी नहीं करता, उसका शारीरिक तंदुरुस्ती बढ़ गया, अच्छा 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 प्रसाद खाता है, प्रसाद पसंद है उसको, सुबह उठकर माला जपता है, 4 नियमों को पालन करता है, शुद्ध जीवन है, सरल जीवन है, नाचता है कीर्तन में, बहुत अच्छा लगता है हमको। इतना बदलाव आ गया उसके जीवन में। तो इस तरह आप देख सकते हैं भक्ति करने के लिए कुछ खर्चा नहीं है, फिर भी इंसान मूर्ख है, करता नहीं है भक्ति है। वो इधर घूमेगा उधर घूमेगा, पैसा खर्चा करेगा, पाप करेगा, दुख दुख में पीड़ित रहेगा, लेकिन भक्ति नहीं करेगा, ये उसकी अभाग्य है। करेक्ट है ना? तो आजकल पैसा की कमी नहीं है समाज में, भारत में भी MNCs आ गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत पैसा लोग कमाते हैं बहुत, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत कसरत करते हैं इंसान, कभी कभी 16 घंटा भी करते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ सुधार कैसे हम ला सके, ऐसे सुधार कैसे आ सकता है, उसके लिए मार्ग हमें कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके संबंध में मैं 2 शब्द आज बताना चाहता हूँ आपको। एक श्लोक बोलेंगे भागवत से, ठीक है? कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्म विहि। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर का मतलब है तुम्हारी इच्छाओं को इंद्रिय तर्पण के दिशा में मत लगाओ, इसके विरुद्ध तुम्हारी इच्छाओं को भगवत कैंकर्य में लगाओ, क्योंकि तुम इंद्रिय तर्पण की दिशा में लगाओगे वो शोक का मार्ग है, वो शोक मोह भय इत्यादि बढ़ेगा उससे। इसका मतलब यह नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति वर्जित है, जीरो पूज्य बनाना पड़ेगा। हम सबको थोड़ा बहुत चाहिए, जैसे खाना भोजन खाना होता है, नींद भी चाहिए, कुछ लोग विवाह करके बच्चे पैदा करना चाहते हैं, वो भी चाहिए, और हम सुरक्षित अवस्था में रहना चाहते हैं। तो आप देखेंगे हमारे शरीर की टेम्परेचर कितना होना चाहिए मालूम है किसी को? 98.4 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होना चाहिए, करेक्ट ना?
लेकिन अगर बुखार बढ़ गया 101, 102, 103, तो उससे हमें तंदुरुस्ती नहीं रहता है, अच्छा नहीं लगता हमको। शरीर गरम गरम हो जाता है, जीवा कड़वा होता है, हम उठ जाते हैं, उठेंगे तो लगता है बैठो, बैठेंगे तो लगता है सो जाओ, सोएंगे तो शरीर में तकलीफ होता है, उठ जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है हमको। और कभी कभी वो बुखार बढ़ जाता है 104, 105 है, और 107 का मतलब मरण ज्वर, उधर इंसान मर ही जाता है। और उतना ज़्यादा अगर बुखार बढ़ जाता है तो भौतिकता भी ऐसे ही है। जितना हम भौतिकता को बढ़ाएंगे उतना बुखार बढ़ाने के बराबर है वो। क्योंकि दो चीज़ है जीवन में, एक है आध्यात्मिकता, दूसरा है भौतिकता। ये दोनों की संतुलन नहीं रहता, उसको धर्म से ग्लानि बोलते हैं। धर्म से ग्लानि का मतलब है इंसान धर्म को भूलकर आध्यात्मिकता को भूल जाता है, भौतिकता में बढ़ता है, तब भौतिक बुखार बढ़ने से आत्महत्या होता है। इंसान को बुखार बढ़ता है। नहीं तो आईआईटी हैदराबाद में 2019 में 3 बच्चे कूद पड़े, मालूम है आपको? 2019 में। हाँ, और अभी इस साल में 2023 में चेन्नई में 4 बच्चे 3 महीने के अंदर आत्महत्या की। मतलब भौतिकता बढ़ गया है, आध्यात्म बड़ा पूज्य है आध्यात्मिक जीवन में। यही कारण है, संतुलन नहीं है। अगर 98.6 होता, संतुलन होता दोनों का, तो समन्वय होने से शांति प्राप्त होता है इंसान को। तो इसलिए स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनी में हम जैसे साधुओं को भी, हम लोग कौन है, वैदिक साइकियाट्रिस्ट हैं। आपको पिल नहीं खाना पड़ेगा, सिर्फ नाम खाना पड़ेगा बस। नाम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे आप, तनाव हो रहा है करके, वो लोग पिल्स देंगे आपको। पिल को खाने से क्या करता है, वो आपके मन को दबाने के लिए, जैसे एक बंदर के हाथ पैर ऐसे बांध दो रस्सी से, ऐसे बंदर को बिठाओ, कैसे बटेगा वो, ऐसे वो लोग मन के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर देकर मन को बांध देते हैं वो लोग दवाई के द्वारा। लेकिन जो लोग वो करते हैं वो दे बिकम हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल है, ऐसे कुछ भी हंसेंगे कभी भी, उधर पागल हो जाते हैं। आपने देखा, उधर मोटे भी हो जाते हैं वो लोग, देखा होगा आपने। वो दवाई से कृत्रिम रूप से वो लोग दबाते हैं। लेकिन हम जो महामंत्र सिखाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, ये क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है, अगर आप सुनेंगे, जैसे एक आईने के ऊपर अगर धूल पड़ा हो तो आप चेहरे को देख नहीं पाते हो, लेकिन एक गीला कपड़ा लेकर आप पोंछने से वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है, तब आप देख पाते हो। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र का नाम जब नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, ऐसे शास्त्र बताते हैं कि नाम श्रुति से चित्त निर्मल होता है, वो निर्मल होने के बाद शांति प्राप्त होता है आपको। जैसे कमरा भी, अगर कोई चावल दाल इत्यादि खाकर, सब्जी इत्यादि छोड़कर चले गए, कोई आता है उसका पाँव पड़ता है उन चीज़ों के ऊपर, उनको अच्छा नहीं लगता उनको, लेकिन उस कमरे में पानी डालकर उसको साफ सुथरा रखो, उसको सुखा दो, कुछ फिनाल ऐसा कुछ डालकर, एकदम अच्छा लगता है। तो क्लीन रूम इज़ वेरी प्लीजिंग। इसी तरह क्लीन मन भी, हमारे मन भी शुद्ध हो, खुद के लिए भी शांति, दूसरों को भी शांति। तो मन को शुद्ध कराता है ये हरिनाम की जप। लेकिन आजकल जप किधर जगह सिखाया जाता है बच्चों को, स्कूल में, कॉलेज में है, वो लोग नाम को नहीं गिनते हैं, पैसा को गिन रहे हैं सब लोग, हैं ऐसे। तो इसलिए ये भौतिक बुखार बढ़ने नहीं देना चाहिए, हम उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि 0 बना दो उसको, लेकिन 98.6 भौतिक जीवन में ज़रूरत है ज़रूर। इसलिए बोलते हैं लाभो जीवेत यावता। इसका मतलब क्या है, लाभ अर्जित करो, लेकिन जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना अर्जित करो, ऐसे बताते हैं। जैसे हमारे शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए कुछ रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि की ज़रूरत है ज़रूर। एक पुरुष है, पत्नी को, बच्चों को संभालने के लिए पैसा की ज़रूरत है, कमाना ही है सबको। हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि नौकरी धंधा छोड़ दो, कृष्णा गोविंदा गोपाल नाम जपते रहो बस, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सबको कमाना है, लेकिन कमाई ऐसे हो ताकि हम भौतिक आध्यात्मिक संतुलन हम रख सके, और रखना आवश्यक है। तो लाभो जीवेत यावता, जीव से तत्व जिज्ञासा। एक इंसान को भौतिक जीवन जीते समय उसको जीवन के लक्ष्य के बारे में खोजना चाहिए। उसको पता चलना चाहिए कि हे, हमारे उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों दुख भोग रहे हैं, किधर जाना है हमको,
इसके बारे में पूछना बड़ा आवश्यक है। हाँ, एक हमने कहानी सुना, एक वो लंबी कहानी को मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूँ। एक साधु महात्मा एक राजा के पास आ पहुंचा, उसको सदुपदेश देना था राजा को, लेकिन राजा मूड में नहीं था। राजा बोला, स्वामी जी आपको मालूम नहीं, इतना समय की पाबंदी है, अनेक लोग मीटिंग के लिए आए हैं मुझे मिलने के लिए, आपको थोड़ा डोनेशन दे देता हूँ, थोड़ा नारियल फल इत्यादि ले लीजिए, आप आराम कीजिए, आपके लिए कुटिया दे देता हूँ, लेकिन हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बड़े मीटिंग्स में हैं हम, ऐसे बोला राजा। साधु महात्मा ने सोचा कि क्या किया जाए, इसको इसको सद्बुद्धि देने की इच्छा है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है ये राजा। ठीक है, तो वो बोले कि एक ही मेरा विनती है आपको, आपके प्रदेश में, आपके देश में एक मूर्ख को चुनकर उसके हाथ में ये लाठी दे दीजिए, पूरा उसको घूमने घामने के लिए बोलिए, और आप उसको वेतन दे दीजिए महीने में एक बार, इतना तक करेंगे राजा, मैं खुश रहूंगा। वो बोला ये क्या बड़ी बात है, हम आसानी से कर सकते हैं। किया अभी उसने, एक मूर्ख को ढूंढ निकाला, उसका हाथ में लाठी दिया, वो घूमता घामता था, उसको महीने में वेतन दिया। तो कुछ समय के बाद राजा का वयस बढ़ गया, वृद्ध हो गया, वो मृत्युशैया में था। तब एक एक करके सब नाता रिश्तों को बुलाया, उसने मूर्ख को भी बुलाया, बोला कि मूर्ख इतने साल तुमने मेरी सेवा की, अभी मैं तुमको भी रिटायरमेंट दे दूंगा और तुमको पेंशन दे दूंगा, तुम आराम करो, किसी दूसरे मूर्ख को लगा देंगे तुम्हारे काम में, ऐसे बोल रहे थे वो। तो मूर्ख ने पूछा, राजा राजा आप बोल रहे हैं कि कहीं तो जा रहे हैं, आप मुझे भी साथ में लेके जाएंगे आपके साथ? राजा बोला, अरे तुम नहीं आ सकते मेरे साथ, बोला राजा ने। तो मूर्ख ने बोला, लगता है कि आप रानियों को साथ में लेके जा रहे हो, इसलिए मुझे नहीं लेके जाएंगे, करेक्ट है ना? राजा बोला, अरे रानी कोई नहीं आ सकती है, मुझे अकेला जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अकेले आपको जाना हो तो थोड़ा प्रसाद पा करके लेके जाइए, हैं? तो आपके रथ में जाइए और थोड़ा सोना चांदी खजाना से लेकर जाइए, आपको अकेले जाना हो, कोई नहीं आएगा तो पैसा चाहिए, कुछ सामान चाहिए, सब कुछ। राजा बोला, अरे कुछ नहीं आ सकता मेरे साथ, रथ भी नहीं, पैसा भी नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, रानी नहीं, हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, कोई नहीं आ सकता, ऐसे बोला। तब मूर्ख ने बोला, इतना दूर प्रदेश जाना है आप बोल रहे हैं, अकेले कैसे जाएंगे राजा? वो बोला, जाना ही पड़ेगा हमको, क्या करें। तब बोला कि इतना प्रश्न मत पूछो मूर्ख, तुम पूछने से मेरा तनाव बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, इसलिए चुप रहो, तुम्हारे स्थान में और एक मूर्ख को नियुक्त करो और तुम रिटायर हो जाओ, तुमको पेंशन मिल जाएगा, चले जाओ तुम, ऐसे बोला उनको। तब मूर्ख ने लाठी को लेकर राजा के हाथ में दिया। राजा ने बोला, क्या तुम ढूंढ नहीं निकाल सकते? दूसरा मूर्ख, वो मूर्ख बोला, मिल गया ना, आप ही है ना, इसलिए आपको दे दिया। बोला, अरे क्या ऐसे बोल रहे हो कि मैं तुमसे बड़ा मूर्ख हूं? वो मूर्ख सर हिलाया, हाँ, क्या आपको पहले मालूम नहीं था कि ये सब लोग आपके साथ नहीं आएंगे? ये पैसा नहीं आएगा, हाथी नहीं आएगा, घोड़ा नहीं आएगा, राज्य नहीं आएगा, कुछ नहीं आने वाला है, खाली हाथ आप जाएंगे, आपको मालूम नहीं था क्या? तो राजा रो रहा था, मालूम था मुझे, तो आप पूरा जीवन इन चीज़ों को इकट्ठित करने में बिता दिया, हैं? और अंतिम काल में लेके जाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, हैं? खाली हाथ आप जा रहे हो, इसलिए अब आप बड़ा मूर्ख हो, इसलिए आपको दिया। और राजा जोर से फुट फुट कर रोने लगा, अपने सर के ऊपर दोनों हाथ लेकर मारने लगा, बोला कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, सही बोला तुमने, अभी पता नहीं कितने दिन मेरे तकदीर में लिखे हैं, जितना समय के लिए मैं जिंदा रहूंगा तुम मुझे और भी सिखा दो कुछ अच्छी चीज। तुम मूर्ख नाम से घोषणा करते हो अपने आप को, लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो, बताओ तुम कौन हो? था वो मूर्ख बोला कि पहले आए थे मेरे गुरुजी, आपके पास टाइम नहीं था, आप तो मीटिंग में थे हमेशा, लेकिन उन्होंने मुझे नियुक्त तो किया इस पदवी में, मैं उनका ही शिष्य हूँ, मैंने जो भी सीखा आपको सिखा दूंगा, जो भी अल्पकाल बचा है आपके पास, उसमें आप सीख लीजिए। तो राजा को बिठाकर वो मूर्ख ने सब कुछ सिखा दिया, बोला कि ये जो दुनिया है जिसमें आप रहते हो, इसको भौतिक दुनिया बोलते हैं, लेकिन परलोक जो होता है वो दिव्य है, भौतिक दुनिया जो है वो भौतिक है, परलोक जो है वो आग जैसा है, ये भौतिक दुनिया धुआं जैसा है। धुआं से क्या होता है? भलाई होता है, नुकसान होता है। हाँ,
वो नाक के अंदर जाता है, आंखों के अंदर जाता है, इंसान रो पड़ता है। उससे लाभ नहीं है धुआं से, लेकिन बहुत ही दिन है धुआं जैसे, क्योंकि इधर सुख दुख का मिश्रण है। लेकिन भगवत नाम आग जैसा है। आग से काम होता है रसोई में, धुआं से काम नहीं होता है। तो आग को बढ़ाने से धुआं मिट जाता है, करेक्ट है ना। अब एक फूंक नहीं लेकर आग के ऊपर ऐसे फूंकेंगे तब धुआं मिट जाएगा। तो मूर्ख ने बोला उनको, वो शिष्य ने बोला कि अगर आप आध्यात्मिक चेतना को वर्धन करो, उससे तुम्हारे भौतिक समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगे। आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने एक कथन बोला उसने, द इंटेलिजेंस with which man has created innumerable problems on earth is insufficient to solve those problems, ऐसे बोला उसने। हाँ, तो मतलब क्या है, जिस बुद्धि से इंसान ने अनेक समस्याओं को खड़ा किया है इस दुनिया में, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्नो कैप्स मेल्टिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो निर्माण किया मनुष्य ने। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए वो ही बुद्धि से सुलझा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। उसके लिए आध्यात्मिक बुद्धि की ज़रूरत है। यू नीड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस टू सॉल्व द मटेरियल प्रॉब्लम्स दैट मैन हैज़ क्रिएटेड। इस तरह आग के ऊपर फूंकने से धुआं मिट जाएगा, धुआं के ऊपर फूंकने से धुआं बढ़ेगा। तो ये साधु ने सिखाया उसको कि आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने का मतलब क्या है। हरिनाम की जप, गीता भागवत के श्रवण, भागवत के श्रवण और नामों का स्मरण, और भगवान की श्री विग्रह की पूजा आराधना, भगवान को भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद को सेवन करना, प्राप्त करना, और साधु संतों के संग में, संगति में रहना, कुसंग से दूर रहना, जीवन के अंतिम गति जो है, गंतव्य स्थान जो वैकुंठ पदवी की प्राप्ति है, उसके लिए सदा भगवान के चिंतन में डूबे रहना, ये सब सिखाया उसने उनको। तो इसको बोलते हैं जीव से तत्व जिज्ञासा। जैसे आप देखेंगे दुनिया में लक्ष्य के बिना कोई भी इंसान कुछ भी नहीं करता। देखिए, अगर आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हो नौकरी के लिए, अगर कंपनी वाले बोलते हैं तुम ज्वाइन करो, क्या तुमको वेतन देंगे कि नहीं हम बाद में सोचेंगे, अगर वो ऐसे बोलते हैं, कोई ज्वाइन करेगा? आप ज्वाइन करके 6 महीने परफॉर्मेंस दिखाओ, हम सोच कर बताएंगे वेतन मिलेगा कि नहीं। कोई ज्वाइन करेगा नहीं। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा होता है कितना वेतन देने वाला है। सब लोग 4-5 अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेकर देखते हैं किधर ज्वाइन करना है। इधर 16 घंटा काम करना है, पैसा ज़्यादा है लेकिन 16 घंटे। जैसे हम लोग IIT में पढ़ते थे, IIT में एक श्लमबर्गर करके कंपनी आया था, श्लमबर्गर। तो वो लोगों ने पैसा लिखा था, उस जमाने में ऐसे कुछ 1.2 lakhs, P.M. लिखा था। P.M. मीन्स पर मंथ। तो हमने चश्मा निकाल कर देखा, है पर मंथ है पर एनम है, क्योंकि उस जमाने में पर एनम भी ऐसे 2 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम मिलता था नौकरी पर एनम। आजकल तो 4-5 लाख आसानी से कमा लेते हैं महीने में भी। उस जमाने में पर एनम, पर ईयर 3 लाख 4 लाख होता था। हमने देखा कि 1.2 लाख पर मंथ लिखा था वो। तुरंत हमने कैलकुलेट किया 12 महीने के लिए कितना होगा, करेक्ट ना। अरे बाप रे, 15 लाख। तो तुरंत हम लोग TNP ऑफिसर के पास गए, मैं और मेरे मित्र गए, पूछा हमने कि इतना बड़ा नौकरी के बारे में एडवर्टाइजमेंट हुआ है, वो क्या नौकरी है? तो वो बोले हमको, ये भी नौकरी पूरा महीना नहीं है, सिर्फ 15 दिन करना है आपको, 15 डेज काम करना है, 15 डेज छुट्टी है आपको। अरे बाप रे, और भी अच्छा हो गया। अभी 15 दिन काम, 15 दिन घर में छुट्टी भी, और महीने में आपको 1.2 लाख मिलने वाला है हाथ में, बढ़िया। हम सब लोगों ने बोला पता ही अब इंटरव्यू किस दिन होने वाला है। तो सब लोग ऐसे पूछ रहे थे, तो मुझे थोड़ा शंका हुआ इसको देखकर, कुछ तो है गड़बड़ इधर। हाँ, तो बाद में मैं TNP ऑफिसर को मिला कि मैंने बोला सर इतना क्यों दे रहे हैं, मतलब क्या है, कुछ तो होगा इसमें। वो बोला हाँ हाँ ज़रूर है कुछ प्रॉब्लम। मैंने पूछा क्या है? बोले इसको डीप होल ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है ये समुद्र के बीच में होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं वो लोग, 300 फुट ऊपर काम करना होता है आपको, बहुत धुआं, गरम गरम धुआं निकलता है डीप होल ऑयल ड्रिलिंग करते समय।
उसको जो सेवन करता है उसको बहुत व्याधि बढ़ जाते हैं, उसका आयु आधा हो जाता है उसका। अगर कोई उसका 60 साल का उम्र हो तो 30 साल में मर जाएगा वो, इसलिए उसका आधा छुट्टी भी दिया जाता है उसको। ऐसे बोला उन्होंने। हाँ? इतना ही नहीं बोला कि कभी कभी कुछ लोग ऊपर से गिर जाते हैं, गिरेगा तो गया वो, मर ही जाता है वो भी रिस्क है, ऐसे बोले। तो ये रिस्क के लिए इतना पैसा है। तो बाद में मैंने मित्रों को बोला, कोई नहीं गया इंटरव्यू के लिए, हाँ? सब डर गए। उसके बाद एक बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या रिस्क लेते हैं आप देख सकते हैं, हाँ? इस दुनिया में इसलिए बताते हैं कि हम लक्ष्य के बिना कुछ करते नहीं है, करेक्ट है ना। अगर कोई फुटबॉल खेलता हो, दोनों दोनों साइड गोल पोस्ट है ही नहीं है, अगर खेलना चालू करते हैं पूछते हैं कि सर गोल पोस्ट किधर है, आप बोलो नहीं, गेंद को मारते जाओ, मारते जितना दूर भागना हो भागो, इधर भी भागो उधर भी भागो, कोई खेलेगा वो एकदम बोर्डम हो जाएगा ना उसको, हाँ? कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए ना उसको। लक्ष्य के बिना कोई नहीं खेलेगा, गेंद भी नहीं खेलेगा, नौकरी भी नहीं करेगा। अगर कुछ कॉलेज में ज्वाइन करते हो आप किधर ज्वाइन करोगे, अगर उस कॉलेज में पढ़ने से अगर आपको डिग्री प्राप्त होगा, उस डिग्री से नौकरी मिलेगा, करेक्ट है ना। अगर कॉलेज में ज्वाइन करते हो, लोग बोलते हैं कोई भी ज्वाइन कर सकता है, 12th स्टैंडर्ड फेल भी ज्वाइन कर सकता है हमारे कॉलेज में, लेकिन आप पढ़ो 4 साल, पढ़ने के बाद हमारी डिग्री जो है मिलेगा आपको, लेकिन वो ऑथराइज डिग्री नहीं है। ऐसे ही हमने मनमानी करके बनाया है कुछ डिग्री, कोई देंगे तो कौन ज्वाइन करेगा उधर। इसी तरह जीवन में भी पूछना चाहिए कि इंसान होकर हम लोग जी रहे हैं, जीवन का लक्ष्य तो कुछ होगा ना, हाँ? दुनिया बनाने वाले ने कुछ तो लक्ष्य के साथ ही बनाया है दुनिया। तो जिस तरह जैसे छोटे बच्चे होते हैं, नाम क्या है इनका, ओके माधव। माधव किस कक्षा में है माधव, हाँ थर्ड, हाँ 3rd स्टैंडर्ड में है। अभी माधव को क्या अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, दोनों अच्छा। और कोई छोटा बच्चा है इधर, उनको पूछेंगे, उसको पूछेंगे आपको क्या अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है। खेलना, करेक्ट है ना। हाथ ऊपर कीजिए, हाथ। हाँ नाम क्या है, निमाई, ओके। निमाई बहुत ईमानदार है, बोल दिया उसने। खेलना अच्छा, इसको थोड़ा संकोच आया इसको बोलने की। क्योंकि पिताजी बैठे हैं निकट, पिताजी कान पकड़ेंगे, "ए, खेलना है क्या तुमको?" क्योंकि बच्चों को, एक बार मैंने हमारे पूना के स्कूल के बच्चों को बुलाया, 4-5 बच्चों को, उनको पूछा कि हफ्ते में कितने दिन आपको छुट्टी चाहिए, वो बोला 7 के 7 दिन चाहिए आपको। तो बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना नहीं, लेकिन माता पिता क्या चाहते हैं, पढ़ना चाह, उनको पढ़ाई चाहिए। इसी तरह हम लोग इस दुनिया में हमको इंद्र तृप्ति अच्छा लगता है। अनेक इंसान सोचता है अच्छा वेतन हो, लेकिन नौकरी करने के लिए टाइम भी कम नौकरी का हो, ज़्यादा टाइम नहीं, 4 घंटा काम करो, वेतन बहुत बड़ा हो, करेक्ट है ना। इच्छा करते हैं लोग ऐसे। और हम घूमने घामने के लिए टाइम भी मिले, छुट्टी भी ज़्यादा हो, हम पति पत्नी बच्चे हम आराम से रहे, और जितना कम कसरत करना हो उतना कम, लेकिन पैसा ज़्यादा, ऐसा सब इंसान ऐसा अपेक्षा करता है इस दुनिया में। तो इस दुनिया में सब जीव इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा अलग है। भगवान बोलते हैं कि तुम चित्त का शुद्ध करके मेरे पास आ जाओ, क्योंकि भगवान के धाम में ही असली आनंद है। जैसे मैंने बोला आग और धुआं, बोला मैंने, इस दुनिया में सुख और दुख का मिश्रण है, लेकिन भगवान के धाम में सिर्फ सुख है। देखिए अगर आपको स्वीट राइस दिया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा छोटे छोटे पत्थर भी मिलाकर कोई देते हैं, खाते समय बीच बीच में ऐसे पत्थर आता है, आपको बुरा लगता है, नहीं चाहिए आपको, है ना। हाँ, इसी तरह इस दुनिया में आप देखेंगे सुख के साथ साथ क्या आता है, दुख भी आता है। तो मैंने खुद ही देखा, एक ट्रेन में बड़ा परिवार जा रहा था, 10-12 लोगों का परिवार था वो। सब लोग समोसा लेकर खा रहे थे। तो उस परिवार के वृद्ध व्यक्ति जो था, लगभग उसका 70-80 होगा उसका उम्र, वो देखा कि बेटा बेटी सब खा रहे हैं समोसा, वो खुद भी ले लिया। हाँ, वो लोग 8-8 10 खा रहे हैं, ये भी 8-8 10 खा लिया, समोसा लेकर, गर्मा गर्म समोसा। खाते समय बहुत मजा आया उसको,
वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गाते समय। लेकिन अगले दिन पेट दुखने लगा उसको, आ चिल्ला रहा था वो बेचारा बुढ़ा है, कैसे पाचन करेगा वो, हाँ? वो अंदर जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा, हाँ? तो बहुत दर्द हो रहा था उसको। तो इस दुनिया में इधर आनंद हो रहा है, पीछे दुख हो रहा है, हाँ? आप देखेंगे जा नहीं रहा वो, हाँ? तो इस दुनिया में मिश्रण है, हलाद तापकारी मिश्रा, ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं, हाँ? हलाद और शुरुआत में हलाद, उसके बाद ताप, हाँ, तकलीफ होता है। तो इस दुनिया में ऐसे ही है, जो चीज़ हमारे लिए बहुत सुखदायक होते हैं बाद में दुखदायक बनते हैं, देखा जाता है इस दुनिया में। जैसे छोटे बच्चों को जन्म देकर बड़ा करना बहुत आनंददायक है माता पिता के लिए। कितना नन्हा मुन्ना है, हमारे ऊपर निर्भर है, इतना खूबसूरत दिखता है, उसके तोतली बोली कितना अच्छा लगता है, मेरा बच्चा है, माँ ममता बढ़ता है। लेकिन बड़ा होने के बाद वो उसका 12-15 होने के बाद माता पिता को बोलेगा तुम तुम्हारा देखो, हम अपना देखेंगे। तब सोचेंगे क्या बेटा है हमारा, हाँ? तो आप देखेंगे दुनिया में, हाँ, सुख सुख मिलता है पहले, उसके बाद दुख मिलता है, हाँ, आलिंगन मिलता है, उसके बाद लात भी मिलता है, इस दुनिया में। तो इस तरह का भगवान बोलते हैं कि तुम इस तरह के सुख दुख के मिश्रण में क्यों रहते हो, मेरे दाम में आ जाओ, तुमको स्वीट राइस मिलेगा पत्थर के बिना, हाँ? उधर आओगे तो सदा आनंद तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा की, भगवान का भी। तो इसलिए बताते हैं जीव से तत्व जिज्ञासा का मतलब है इस ये दुनिया में मिलने वाले सुख, पानी में जो आम का पेड़ का अगर प्रतिबिंब हो, हाँ, नीचे उस प्रतिबिंब में भी आम दिखता है, हाँ, पानी में भी आम दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन डुबकी लगाने से आम मिलेगा क्या? इस तरह दुनिया में सुख दिखता है लेकिन मिलता नहीं, हाँ, उसके पीछे हम पढ़ेंगे सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है हमको, लेकिन लगता है कि मुझे सुख प्राप्त होने वाला है। एक तरह के क्या बोलते हैं उसको, मृग तृष्णा बोलते हैं क्या उसको, मृग तृष्णा बोलते हैं उसको, हाँ, मृग तृष्णा जैसा है, दूर से पानी जैसे दिखता है, निकट जाने के बाद मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे। तो भगवान बोलते हैं कि इस मृग तृष्णा में तुम डूब मत जाओ, मेरे धाम में आ जाओ, भगवान बार बार बोलते हैं गीता में, उसके लिए मार्ग बना लो, क्योंकि उधर आ जाओगे तो शाश्वत है, काल है। हम क्या कर रहे हैं, अगर ये एक पिंजरे के अंदर एक तोता हो, वो सुखी है दुखी है वो, हाँ, हम भी ऐसे ही हैं, एक शरीर के अंदर पिंजरे में बैठे हैं, अंदर आत्मा शरीर रूपी पिंजरे में बैठा है। लेकिन अगर उस तोते को निकाल रहा है कोई बाहर, तोता सोचेगा हमको अभी स्वच्छंद होकर आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देगा, लेकिन वो उधर से निकाल कर और एक दूसरे पिंजरे में रखता है। इधर तुमने 2 साल रहा ना, इधर 5 साल रहो, ऐसे है। ऐसे हम भी एक शरीर छोड़कर निकलते हैं, अभी दूसरा शरीर में, दूसरे से निकलते हैं तीसरा, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी स्त्री, कभी पुरुष के शरीर में, कभी देवता के शरीर में, कभी कुत्ते बिल्ली के शरीर में, कभी पेड़ पौधे के शरीर में। तो इस तरह जीव अलग 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 योनियों में घूमता फिरता रहता है ऐसे, इस दुनिया में। तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि इस तरह वो क्यों घूम रहा है, कोई बता सकते हैं? जीव अलग अलग नाना योनियों में क्यों घूम रहा है? हाँ, कर्म से बोल रही है माता, ठीक है, और कोई? कोई बोल रहे हैं अपनी इच्छा से, क्या आपकी मर्जी, कुछ भी चुन सकते हैं आप, हाँ? हाँ? ये बोल रहे हैं कि कर्म के हिसाब से उनको मुक्ति नहीं मिली इसलिए घूम रहा है वो, हाँ, और कोई? एकदम आता निकट आ गए आंसर की। ये बोल रही है कि उनका कुछ मटेरियल अटैचमेंट है, इसलिए वो पुनर्जन्म लेता है, ठीक है, और कोई? कोई एक देखिए, मैं जब दक्षिण भारत में था, एक 78 उम्र का एक व्यक्ति था, 78। वो उनके घर में हम गए थे, मैंने पूछा पूजा रूम किधर है, वो पूजा रूम दिखाया, हम जप करने के लिए गए। थोड़ा हम सुबह हमने प्रातः काल में जब 2 घंटा पूरा कर लिया, उसके बाद बाहर आए, मैं देखा कि ये सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट देख रहा है टीवी में, हाँ, क्या है, वो क्रिकेट में कोई बैटिंग करता है, इधर से उधर भागता है आता है, भागता है आता है, दिन भर वही देख रहा है, वही फील्ड है, वही फील्ड है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, बार बार वही देख रहा है, सुबह से, सुबह 10 बजे लेकर शाम को 4 बजे तक। और अगर कोई सिक्सर डाला, ये कूद रहा है, हाय हाय हाय, सिक्सर सिक्सर डाल दिया देखो ऐसे।
तो मैंने सोचा कि ये बुढ़ा अभी 80 उम्र होने वाला है, इसको ये मरेगा तो इसको और एक जन्म जरूर मिलेगा इसको, जिसमें इसको क्रिकेट बैट हाथ में पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो रुचि है आपको उसके अनुसार शरीर दिया जाता है। हाँ, जिस चीज़ों के ऊपर हमारा रुचि है, रुचि किधर है किसी को मालूम है? वो टेस्ट किधर बैठा हुआ हमारे शरीर में, किधर है? मन में। देखिए, बॉडी माइंड सोल, ये बॉडी है जो आईने में देखते हो आप। बॉडी के अंदर एक मन है सूक्ष्म, और मन के अंदर एक आत्मा। अभी आत्मा के दो आवरण हैं, मन और शरीर। और मन में हम इच्छाओं को रखते हैं और शरीर में उसको आकार देते हैं। जैसे अगर मुझे मन में कुछ पियानो बजाने की इच्छा हो मन में, तो मैं हाथ से पियानो बजाता हूँ, क्योंकि हाथ पैर दिया है भगवान ने उस मन की इच्छा को आकार देने के लिए। क्लियर है ना आपको? इसी तरह तो अगर ये इसको इसके मन में क्रिकेट खेलने की इच्छा है, लेकिन अभी बूढ़ा हो गया, बैठा है, फिर भी कूद रहा है, उसको मन में इच्छा अभी, जो इच्छा बड़ा प्रबल है, मृत्यु के काल में क्या होगा? आत्मा मन के साथ आवरण के साथ आएगा बाहर, और ऐसे एक शरीर में घुसेगा जिधर वो इच्छाओं को आकार दे सकता है। हाँ, इस तरह हम लोग इसलिए घूम रहे हैं इस दुनिया में। एक जन्म आते समय 5 इच्छा लेकर आते हैं, और उस जन्म में वो 25 इच्छा हो जाते हैं, और उस 25 इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग योनियों में घूमते हैं, और भी इच्छाएं बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे घूमते 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 कभी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अलग अलग माताओं की योनि में घूम रहे हैं ऐसे हम लोग। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, इस तरह से जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं काटना होगा, लेकिन उसके लिए हमें मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन में अगर आप लोग आज अक्षय तृतीया के दिन आए हो इस कार्यक्रम में, ये बहुत बड़ा पुण्य का दिन है, क्योंकि इसी दिन सुदामा ने कृष्ण को मिला था द्वारका में। इसी दिन गंगा उधर स्वर्गलोकों से धरती में आ पहुंची, आज के ही दिन। इसी दिन वेद व्यास ने गणेश जी को सब वेद पुराण उपनिषद को डिक्टेशन चालू किया, आज ही गणेश जी ने लिखा। इस तरह इस आज के ही दिन वो अक्षय पात्र की लीला हुई, जो द्रौपदी के अक्षय पात्र में सब खत्म हो गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आकर एक शाक को लेकर अपने मुंह में डाले, उससे दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्यों की पेट भर गया था। आज का ही दिन है वो लीला हुआ। इस तरह अनेक पवित्र चीज़ें हुई आज के दिन। आज बहुत परम पावन दिन है आज अक्षय तृतीया। तो हम लोग इस तरह कभी हम ऐसे साधु संतों की संगति में पहुंच जाते हैं, इन विषयों के बारे में थोड़ा तत्व जिज्ञासा करते हैं, तो हमें ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि मेरे मन में कुछ इच्छाएं हैं जिसके कारण मैं बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर काट रही हूँ। तो मन को शुद्ध करने का मतलब, अभी नाम जप करके अगर आपने 20% शुद्धिकरण कर दिया मन को, तो अगले जन्म में आप 21 से चालू करोगे आप। अगर आपने 60 तक शुद्धिकरण हो गया तो 61 से चालू करेंगे आप। इसलिए आप देखते हैं कि आप में से कुछ लोगों को रुचि थोड़ा ज़्यादा है भक्ति में, है कुछ लोगों को थोड़ा रुचि कम है। कोई बोलेंगे प्रभु जी हम हर क्लास में नहीं आ सकते, 2-3 महीने में बुलाइए एक बार आएंगे, कुछ खास फेस्टिवल अक्षय तृतीया तो बुलाइए हम आते हैं, बाकी टाइम रेगुलर वीकली में बुलाइए नहीं, मत बुलाइए, हमको बहुत कुछ काम काज है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है, जितना कितना जल्दी आप चित्त को शुद्ध करना चाहते हो, समझना आपने। जैसे अगर कंप्यूटर लिखते हो आप, जब मैं कंपनी में काम करता था, हम लोग बड़े लंबे कंप्यूटर लिखते थे बैरिंग डिज़ाइन के लिए। हाँ, वो लगभग 2500-3000 लाइन होता था कंप्यूटर में। इसलिए उसको डीबगिंग करते समय 200 लाइन के बाद रुक जाता था वो, क्योंकि उधर एक बग है। उसको ठीक करने के बाद और 300-400 लाइन जाएगा, उधर रुक जाएगा। तो वो डीबगिंग करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन डीबगिंग पूरा करने के बाद इतना आनंद आएगा हमको। पूरा पूरा प्रोग्राम चल रहा है, और अनेक उसमें से 50-60 लोग उस प्रोग्राम को यूज़ करेंगे बाद में उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो मैं इस तरह का प्रोग्रामिंग करता था। तो डीबगिंग जो करते हैं, जिस तरह बग्स को निकालते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम से, इसी तरह हम लोग हमारे मन में भी काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सरी इत्यादि जो है, उन बग्स को निकालना चाहिए हमको। उसके लिए ये दुनिया दिया है भगवान ने, चित्त की सुधार के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए। तो भगवान की चाह कि हम चित्त की शुद्धि करें, हमारी इच्छा है कि हम इस दुनिया में इंद्रिय तृप्ति करें। तो भगवान ने इसलिए क्या किया है, दोनों को जोड़ कर एक प्रोग्राम दिया है। जैसे माता बोलती है, अभी वो बच्चा, उसका नाम क्या है छोटा,
निमाय। अभी निमाय को माँ बोलती है निमाय तुमको खेलना है बहुत, ठीक है 5 से 6 खेलो, लेकिन 6 से 7 पढ़ाई करो, 7 बजे हम डिनर खाएंगे, हैं ऐसे बोलती है। तो निमाई बोलता है माता को ठीक है 5 से 6 खेलूंगा आप, लेकिन बीच बीच में मत आना आप, हैं मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। वो बोलते हैं ठीक है डिस्टर्ब नहीं करूँगी, लेकिन 6 बजे तुमको आना पड़ेगा, ठीक है। वो बोलते हैं सर, इस तरह भगवान भी हमारे लिए एक कंडीशन बनाया, क्या है, ठीक है तुमको तृप्ति करना है इस दुनिया में, 3 चीज़ याद रखो, सैंक्शनड, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड, इसको फॉलो करो। कुछ भी तुम भोजन खाना अच्छा लगता है तुमको, सैंक्शनड भोजन क्या है, शाकाहारी भोजन, लेकिन मांसाहार, मछली, अंडा इत्यादि मत खाना, सिर्फ शाकाहारी भोजन खाना। उतना ही नहीं, उसको भी भोग चढ़ाकर किसके रूप में खाना, हाँ प्रसाद के रूप में, दैट इज सैंक्टिफाइड। तो सैंक्शन, सैंक्टिफाइड। उसके बाद प्रसाद को भी थोड़ा सीमित मात्रा में खाना, बहुत ज़्यादा मत खा लेना। कुछ लोग इतना पैकिंग करते हैं पाने के बाद फिर भी डालते रहते हैं, इतना डालते हैं जब तक एक चावल नाक से आ जाता है तब तक डालते रहते हैं। ऐसा नहीं खाना चाहिए, हैं प्रसाद भी हो तो भी सीमित मात्रा में खाना चाहिए। और इसी तरह किसी को पुरुष स्त्री का दुनिया में आकर्षण होता है, तो भगवान ने इसलिए विवाह यज्ञ रखा है। ठीक है एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर सकता है, वो सैंक्शनड है। लेकिन अगर स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी इस तरह के क्लासेस में आते हैं, नाम जपते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, वो सैंक्टिफाइड है, सैंक्शनड भी है और सैंक्टिफाइड भी है। अभी क्या सैंक्शन नहीं है, अगर एक पुरुष विवाह कर लिया एक स्त्री से फिर भी परस्त्री के साथ घूमता हो, वो सैंक्शन नहीं है। इस तरह एक स्त्री विवाहित है, अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से आकर्षण है उसको, वो अवैध संग है, वो सैंक्शन नहीं है। इसलिए सैंक्शनड होना चाहिए और सैंक्टिफाइड होना चाहिए, भक्ति में जुड़ना चाहिए। और रेगुलेटेड का मतलब क्या है, पति पत्नी को सेविंग करना चाहिए, पैसा की बर्बादी नहीं करना चाहिए। उदाहरण आपको बताता हूँ, पुणे में एक भक्त हैं, वो कुछ 5-8 साल के लिए, कुछ शायद 8 साल कुछ अमेरिका गए थे। वो अमेरिका में जाकर कुछ काम किया, नौकरी किया, कमा भी लिया उन्होंने। 45 उम्र में वो नौकरी छोड़ दिया उन्होंने, उनके 2 बेटी हैं उनका। और वो बोले कि मेरा सेविंग कर लिया मैंने अच्छी तरीके से, पुणे के मंदिर के निकट एक घर भी कर लिया, और अभी कुछ फ्रीलांस नौकरी कर रहे हैं वो, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन करते हैं, वो भी हर दिन सिर्फ 3-3 घंटे का नौकरी, फ्रीलांस। उनका थोड़ा कार्ड बना लिया खुद का, कुछ एजेंसी कुछ ऐसे जैसे। तो बहुत एकदम कूल जीवन है। बाकी टाइम प्रॉपर की किताब वितरण करते हैं, प्रवचन देते हैं, काउंसलर बन गए पुणे मंदिर में, एकदम भक्ति में तृप्त हैं, खुशी से। तो मैं उनको एक दिन बुलाकर पूछा कि प्रभु जी आप इतने कम वयस में नौकरी छोड़कर इतना बहुत खुशी से रहते हैं, कैसे चल रहा है आपका। तो वो बोले कि मेरा शुरुआत के दिनों से मेरा आदत था कि पैसा की ज़्यादा मैं खर्चा नहीं करता था। मैं और मेरे पत्नी दोनों ने निर्णय लिया कि हम घूमने घामने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, 4 दीवार के अंदर ही रहेंगे। एक आध बार जाना तो जाएंगे, लेकिन पैसा को वेस्ट नहीं करेंगे। बाहर हम कभी नहीं खाते थे, कभी होटल में नहीं जाना, कभी इधर उधर पैसा को खर्चा नहीं करना, सेविंग करते गए हम। बच्चों को भी अच्छा बड़ा किया उन्होंने ऐसे। तो सेविंग करके अभी 45 उम्र में एकदम आसानी से VRS ले लिया उन्होंने, वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। अभी भक्ति भक्ति में दोनों रोज मंदिर में आते हैं, बहुत खुशी से बढ़ रहे हैं। तो उनका तृप्ति जो है, संस्कृत में 2 शब्द हैं, अभ्युदय, निश्रेयस। निश्रेयस का मतलब है आत्मतृप्ति, निश्रेयस। अभ्युदय का मतलब है इस दुनिया को थोड़ा दिखाने के बाद आपको एक मजा आता है ना, उसको अभ्युदय बोलते हैं। Accomplishments by which you can show off to the outside people, that is called abhyuday. Nishreyas means fulfillment of heart, आत्मतृप्ति। जैसे आप भोजन करते हो आपकी तृप्ति के लिए, करेक्ट ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं देता आपको आपका पेट भर गया करके, आपको ही मालूम है आपको पेट भरना है इसलिए भोजन खाते हो। लेकिन हम ड्रेस करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, करेक्ट ना, इस दुनिया में। तो अकम्पलिशमेंट मीन्स टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड, ये फुलफिलमेंट मीन्स योर ओन सेटिस्फैक्शन। तो जो भक्त लोग जानते हैं कि ये दुनिया क्षण भंगुर है, मिटने वाली दुनिया है,
ये शरीर भी मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी में ही मिलेगा वो। इसलिए ज़्यादा हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। हाँ, आत्मा के कल्याण के लिए काम करो, तो वो ही लोग पैसा बचाएंगे, पैसा की खर्चा अनावश्यक नहीं करेंगे वो। हाँ, तो हमें थोड़ा कंट्रोल चाहिए हमारे आदतों में, डिसिप्लिन चाहिए। व्हेन यू गो फ्रॉम नीड टू ग्रीड, यू हैव टू ब्लीड, ऐसे बताया गया। व्हेन यू गो फ्रॉम नीड टू ग्रीड, देन यू हैव टू ब्लीड। उसका मतलब है जो लोग लग्जरी, नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में लाइन नहीं डाल सकते हैं, वो लोग लग्जरी के दिशा में चले जाते हैं। एक उदाहरण बताएंगे। अभी ये जो चूहा होता है ना, उसको तो खेती में अनेक धान्य मिल जाता है, गेहूँ, चावल इत्यादि, ग्राउंड नट इत्यादि मिलता है उसको। लेकिन उस चूहे को जब एक रैट ट्रैप डालकर उसके अंदर कोई पकौड़ा डाला है अंदर, पकौड़ा का स्मेल आ जाता है उसको, हे पकौड़ा। अभी उसको पकौड़ा खाने की इच्छा में वो अंदर रैट ट्रैप के अंदर घुसकर देखता है कि अरे किसी मूर्ख ने ऐसा लटका दिया है इसको, हाँ, पता नहीं, उसको खींचता है, तब पाट करके बंद हो जाता है, पकड़ा जाता है। करेक्ट है ना? मूर्ख कोई नहीं है, वो खुद ही मूर्ख है वो फंस गया वो। अभी उसको नीड क्या है? भोजन, वो उधर ही मिल रहा है खेती में उसको, धान्य इत्यादि। लेकिन ग्रीड क्या है? पकौड़ा, इसके कारण पकड़ा गया। इसी तरह मछली भी, पानी में उसको खाने के लिए भगवान रखा है बहुत कुछ, आलगे अनेक चीज़ें हैं उसको, लेकिन उसको क्या मांस का टुकड़ा चाहिए उसको। ऊपर से कोई मछुआरा लटकाता है, उसके पकड़ में जाता है, वो हुक को अंदर चला जाता है, उसको उसको उठा लेता है बाहर, मर जाता है, जान चला जाता है। आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी नीड टू ग्रीड का मतलब क्या है? हम लोग जो इस दुनिया, दोनों जानना चाहिए हमको, ये भौतिक दुनिया में रहते हैं हम, लेकिन ये दुनिया परमानेंट दुनिया नहीं है, वो दुनिया परमानेंट है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये मृत्यु लोक को छोड़कर हमें अमृतमय वैकुंठ धाम में जाना चाहिए, जिधर भगवान शाश्वत हैं, जीव शाश्वत हैं, उनके प्रेममय संबंध भी शाश्वत है। जैसे गोप गोपियाँ, गाय बछड़े, हाँ, सब वृंदावन में सदा कृष्ण के साथ रमते हैं, वो दुनिया शाश्वत दुनिया है। जिस तरह आप अयोध्या के बारे में पढ़ते हो, प्रभु रामचंद्र, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान और अयोध्यावासी, उनके संबंध शाश्वत है भगवान के साथ। इस तरह भगवान की शाश्वत लीला में प्रवेश करना हो तो जीव को इस दुनिया में कमाने के साथ साथ सेविंग भी करना चाहिए, भौतिक जीवन को सरल रखना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन का वर्धन करना चाहिए। हाँ? इसका मतलब है वो फूंकने लेकर आग के ऊपर फूंकने के बराबर है। आग के ऊपर फूंकने से आग बढ़ता है, धुआं मिट जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस दुनिया में सुख दुख का मिश्रण है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आप गंभीर बनो, आपको सुख का अनुभव होगा और आप देखेंगे कि आपके भौतिक मांगें कम हो जाएंगे, भौतिक डिमांड्स। आप देखिए ब्रह्मचारी सन्यासी लोग जो है, उनके पास क्या है? वे आचरण में है, हम लोग सिर्फ फकीर हैं। फकीर, फकीर का मतलब है जैसे भिखारी जैसे हैं। हमारा खुद का कुछ बैंक अकाउंट नहीं है, कल के बारे में हमको मालूम भी नहीं, कल क्या कौन क्या देगा हमको कुछ मालूम नहीं। अभी हम मंदिर में भर्ती होकर हम रहते हैं, तो अभी अभी अब देखेंगे साधु का जीवन क्या है। भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्य। अगर कोई मेरा भक्त बनकर मेरा काम करेगा तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सब व्यवस्था करूँगा। हमारी प्रसाद, कुछ ट्रैवल करने की व्यवस्था, एक कोने में चटे लेकर सो जाना, बस इसके लिए सुविधा भगवान देते हैं। लेकिन हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं, हमारा ध्यान है हम प्रभुपाद के मिशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग इस दिव्य ज्ञान को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जिस तरह कोई भी पिताजी अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, ऐसे पिताजी बच्चे का ख्याल रखते हैं, इसी तरह भगवान अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। जो पूर्ण विश्वास रखकर पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं, वो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग ऐसे जीवन देते हैं। लेकिन गृहस्थों के लिए शास्त्र बताते हैं कि उनको पैसा कमाना चाहिए, बैंक अकाउंट रखना चाहिए, बीवी बच्चों को संभालना चाहिए, माता पिता को संभालना चाहिए, लेकिन उसको करने के साथ साथ भक्ति भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे गृहस्थ भक्त लोग संगति साधुओं के संगत में आएंगे, उनको आसानी से पता चलेगा कि इस दुनिया में सबकी जीवन व्यापन के लिए भगवान ने आयोजन किया है।
एक हमने हिंदी में गीत सुना, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत होंगे क्या गेहूं का चपाती नहीं दोगे। ऐसे गीत है। मतलब क्या है, बच्चा का ये नहीं होता है, दांत नहीं होता है शुरुआत में, तो माँ का स्तनपान रखा है भगवान ने, क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकता बाकी चीज़, दूध रखा है उसको। थोड़ा दांत आने के बाद उसको ब्रेड एंड जैम मिलता है, नहीं तो चपाती मिलता है, करेक्ट है ना, उसको ऐसे। तो भगवान जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, सही भोजन भेज ही देते हैं भगवान। अभी अफ्रीका जंगल में जो हाथी है, नहीं तो पंछियां हैं, ये क्या कॉलेज में थोड़ी गए, डिग्री हासिल किए बिना उनका खाना पीना चल रहा है उनका। इस तरह दुनिया में सबके लिए व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि डिग्री प्राप्त करने के बाद ही आपको पैसा मिलने वाला है, ये मिलेगा। आप देख सकते हैं कि भगवान सबके लिए आयोजन किया है। फिर भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार को आप लोग चलाने की कर्तव्य है आपको, लेकिन भौतिक जीवन सब कुछ नहीं है। हाँ, जैसे मैंने आपको ये IIT बच्चों के बारे में बता रहा था, ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भौतिक जीवन को ही सर्वस्व माना। ये गलती है उनका। दुआ को ही माना कि दुआ ही दुआ है बस, आग के बारे में इनको जानकारी नहीं है इनको। हाँ। इस तरह, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हो, इस कार्यक्रम में आते हो, इस तरह के कार्यक्रम में आप जानते हो कि ये ये भौतिक दुनिया क्षणभंगुर है। चस्ස सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वैकुंठ कभी नाश नहीं होगा। भगवान शाश्वत हैं, जीव शाश्वत है, संबंध शाश्वत है। तो हम लोग उस हमारे जीवन में एक तरह का आध्यात्मिक भौतिक संतुलन तब आएगा जब हम आध्यात्मिक विषयों के बारे में सुनते हो। हाँ, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके लिए समय थोड़ा देते हैं, नाम जप कर। जैसे ये परिवार के बारे में बोला मैंने पुणे में, हाँ, तो ये 45 में एकदम खुशी से जी रहे हैं। अभी दो, मैंने उनको पूछा, दो बेटी है आपका, वो बेटियां अभी बड़ी हो गई, अभी 10वीं में एक है, ये कॉलेज जा रही है। अभी इनके विवाह के लिए क्या करेंगे? बोला उनके लिए भी सेविंग कर दिया मैंने। वो बोले पहले से हमने सेविंग करके रखा है उनके लिए। तो उनके विवाह के लिए भी सेविंग कर दिया, खुद का बड़ा घर है और भविष्य के लिए सेविंग कर दिया, अभी पूरा भक्ति में लग गए हैं ऐसे। तो इसके लिए बहुत डिसिप्लिन और सेंस कंट्रोल की ज़रूरत है। जो लोग अपने इंद्रियों को संयमित करके, मन को संयमित करके, पैसे को सेविंग करके, बर्बादी ना करके और भगवत कैंकर में जुड़ कर रहते हैं, वो लोगों की जीवन धीरे धीरे सरल, भौतिक जीवन सरल हो जाएगा, आनंदमय भक्तिमय जीवन वो जी सकते हैं। और बाकी लोगों को जीवन हम देखते हैं दुनिया में, भागो भागो दौड़ो दौड़ो। हाँ, ये एक व्यक्ति मिला मुझे, उसका वयस है 70, मंदिर में आकर उसको नौकरी चाहिए था। वो बोला कि प्रभु जी मुझे महीने में कम से कम 1 लाख का नौकरी चाहिए, 1 लाख रुपया। मैंने बोला तुम 70 वयस का हो, क्या नौकरी करोगे तुमको, हम 1 लाख दे सकते हैं आपको, हम देते हैं 15-20 हज़ार देते हैं, क्या है? तो तुम्हारे पास पैसे सेविंग नहीं किया है तुमने? वो बोला उसके जीवन में उसने 2 करोड़ सेविंग किया, लेकिन उसका इकलौता बेटी थी। हाँ, वो लोग गल्फ वगैरह उधर काम करके वापस आने के बाद 2 करोड़ सेविंग किया है उसने। उसके एक बेटी की शादी करते समय उसने इतना खर्चा किया, पूरा 2 करोड़ को खत्म कर दिया उसने। हाँ, उसके लिए घर बांध कर दिया, उसका शादी में इतना खर्चा किया। वो दिखाना चाहा सारे दुनिया के लोगों को, देखो हम हमारी बेटी का विवाह कैसे किया हमने, इम्प्रेस करने के लिए। अभी बोल रहा है मेरा 70 हो गया, पैसा नहीं मेरे पास, मुझे नौकरी करना अभी उस वयस में जाकर। तो इसलिए मैंने बोला इम्प्रेसिंग गेम इज ए नेवर एंडिंग गेम। हाँ, ये दूसरों को इम्प्रेस करने की पीछे पड़ेंगे ना हम, तो हम कभी शांति से नहीं जी सकते हैं। एक एक दिन रात के समय एक चोर टूट पड़ा है घर के अंदर, लाइट ऑन किया, पति पत्नी सो रहे थे, लाइट ऑन करते ही दोनों कूद पड़े, कौन आ गया घर के अंदर? चोर के पास बड़ा चाकू था, चमक रहा था। चोर बोला चिल्लाओ मत, तुम शांति से नेकलेस दे दो, तुमको मारूंगा नहीं। तो माता ने तुरंत नेकलेस निकाल कर दे दिया, बोला कि मारो मत। बोला मैं शांति से निकल जाऊंगा, लेकिन आप लोग चिल्लाओगे, पुलिस को बुलाओगे तो मैं वापस आकर मार दूंगा दोनों को, ऐसे बोला। तो वो बोले हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो निकलने ही वाला था, वो माता पीछे भागती हुई गई, बोले ए चोर चोर, मेरे पड़ोस की स्त्री जो है ना उसके पास भी ऐसे ही नेकलेस है, हम दोनों ने एक ही टाइम खरीदा था आपने, तुम उसको भी छोड़ो मत, क्योंकि नहीं तो कल मेरा गुम जाएगा, उसका नहीं उसका रहेगा। इसलिए तो इससे क्या पता चलता है हमको, इस दुनिया में लोग दूसरों को देखकर ही लोग
खुद में कंपटीशन करते हैं, करेक्ट है कि नहीं? इसके कारण हम लोग हटक गए हैं दुनिया में। जैसे केकड़े होते हैं ना, ये इसका टांग खींचता, वो उसका टांग खींचता, दोनों अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर हमें दुनिया के बाहर जाना हो, भगवत धाम जाना हो, तो हम इम्प्रेसिंग गेम को छोड़कर थोड़ा शांति से नाम जपे, गीता भागवत का श्रवण करें। हाँ, और भक्ति में तो हम थोड़ा आगे बढ़े। भक्ति में आगे बढ़ने से हमारी डिमांड्स बढ़ेगा, कम होगा? कम होगा, आप देखेंगे। और भक्ति में ना बढ़ने के कारण दूसरों को इम्प्रेस करना हो तो हमारी डिमांड बढ़ेगा, कम होगा? हाँ, आप लोग समझ गए हैं? बहुत आसानी से। एक लड़का कुछ यूरोपियन कंट्रीज में काम करके पुनः वापस आया, उसका शादी हो रहा था उसका। तो मेरे पास आकर बोला, पहले हमारे क्लासेस में आता था वो, बाद में यूरोप गया। तो क्लास मेरे पास आकर बोला, प्रभु जी मंदिर के एकदम निकट 5 मिनट दूर में मैंने एक घर ले लिया है, ये खुशखबरी आपको देने के लिए मैंने आया। इतना निकट आ गया हमारा घर, अभी 5 मिनट दूर है, चल के ही हम आ सकते हैं। मैंने बोला वेरी गुड, अभी तुम पिछले 8 साल से नहीं थे पुणे में, अभी आ गए, ठीक है अभी अगले महीने से आना चालू हो जाएगा, आओ मैं मंदिर में तुमको अच्छा सेवा भी दूंगा। वो बोल नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे घर तो निकट आ गया लेकिन मुझे वापस यूरोप लौटना है। पूछा क्यों? वो बोला कि जब अभी विवाह हुआ मेरा, मेरे इन लॉस ने बोला कि तुम अभी फॉरेन रिटर्न हो गए, इसलिए इंडिपेंडेंट बंगलो लेना चाहिए तुमको। वो बोला मुझे तो 2 BHK फ्लैट में चल जाएगा। मैंने बोला, वो बोले नहीं 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 नहीं, 2 BHK साधारण लोगों के लिए है। तो बाद में इसने बोला 3 BHK चलेगा, 3 भी नहीं, रो हाउस चलेगा, नहीं नहीं नहीं। आपके स्टेटस क्या है, आप तो यूरोप जाकर आए हो, आपको तो इंडिपेंडेंट बंगलो होना चाहिए। ठीक, अभी इंडिपेंडेंट बंगलो लिया, लेकिन इतना खर्चा कर बैठा, लोन लिया उसने, इसके कारण अभी वापस जा रहा है, बोल रहा है कि प्रभु जी और 10 साल हमको काम करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला तुम्हारे घर आ गया निकट, तुम दूर जा रहे हो। अगर तुम छोटे घर में भी निकट रहोगे तो मंगल आरती रोज आओगे, अभी घर निकट आ गए, तुम दूर चले जा रहे हो। घर खरीदने का मतलब क्या है? घर बैठा हो, उसको भी किराए में छोड़ कर गया हो किसी को। हम्म। इसका मतलब है प्लानिंग ठीक नहीं, करेक्ट है ना? अभी इस लड़का का समस्या क्या था? इम्प्रेसिंग गेम, अपने इन लॉस को इम्प्रेस करना था उसको। ठीक है हम फॉरेन रिटर्न हैं, बंगलो खरीदेंगे, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाया वो। अभी पैसा कमाने के चक्कर में पीछे पड़ा है, भागो दौड़ो, जितना भी कमाइए इम्प्रेसिंग गेम में वो कम ही पड़ेगा आपको, आप देखेंगे। और दूसरा चीज़ है, अगर आप इस तरह के भक्तों के संग में आओगे, आपके अंदर उस तरह की गलत कंपैरिजंस नहीं आएगा। भक्तों के बीच में सब सरल रहते हैं, बड़े धनी भी हो गरीब भी हो, दोनों प्रसाद सर्विंग करते हैं, वो झाड़ू पोछा मारते हैं, सब तरह की सेवा करेंगे इधर। आपको मालूम है उड़ीसा के राजा, नाम क्या था उसका, जो प्रताप झाड़ू मारता था भगवान के रथ के सामने? हमारी संस्था में सब लोग सब सेवा करते हैं। तो हम लोग इम्प्रेसिंग गेम, हिंदी में क्या बोलते हैं इम्प्रेसिंग गेम को? हाँ? दिखावा करना। हाँ हाँ हाँ, प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस, दिखावा। हाँ, दिखावा का मतलब है शोइंग ऑफ। हाँ, ये शोइंग ऑफ गेम तो हाँ, जैसे हमारे चैतन्य चरण प्रभु ने एक सेंटेंस लिखा था, पढ़ा मैंने, इन दिस वर्ल्ड पीपल ट्राई टू परचेज commodities with money which they don't have, to impress people whom they don't like, and uh, one more thing he wrote, and they buy commodities which they don't need। लिखा उन्होंने, इस दुनिया में हम लोग जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमको, उन चीज़ों को हम खरीदते हैं। किससे? क्रेडिट कार्ड से। हाँ, हम खरीदते हैं उन चीज़ों को, किसके लिए? दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, खुद के लिए नहीं वो। हाँ, जैसे वोनिडा में लिखते हैं ना, नेबर्स एनवी और एज प्राइड, लिखते ना ऐसे ही। हाँ। तो चाणक्य के एक श्लोक बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। चाणक्य बोलता है, संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो स्वाध्याय जपदानयो हो। 3 चीज से आप तृप्त हो जाओ। बोलता है क्या क्या है? स्वदारे, अपने पत्नी जो है अगर वो गुणवती हो, उससे तुम तृप्त रहो। अगर कोई, कभी कभी एक आदमी सोचता है कि अरे देखो वो स्त्री इतना खूबसूरत है,
लेकिन मेरे पत्नी बीबी इतना खूबसूरत नहीं है, ऐसा सोचता है। बाद में उसको पता चलता है कि वो खूबसूरत स्त्री दर्जनों लड़कों के साथ घूमती है, वो चरित्रहीन है। तब इसको अकल आ जाता है, बाप रे बाप, मेरी पत्नी ऐसे नहीं है, ये गुणवती है, ये पतिव्रता है। तो इसलिए बोलते हैं कि सदारे अपने पत्नी से खुश रहो, परस्त्री को मत देखो। दूसरा बोलते हैं भोजने, घर में जो भोजन बनता है उसको भगवान को भोग चढ़ा कर खाओ, वो तुम्हारी तबीयत को ठीक रखेगा। होटल में मत खाओ, होटल वाले लोग भोजन बनाते हैं पैसा बढ़ाने के लिए, उसको खाओगे तो पेट दुखेगा तुम्हारा, हाँ? बाहर मत खाओ बोलते हैं। तीसरा है धने, तुम्हारे पॉकेट में जितना कमाया तुम, उससे ही तुम खर्चाओं को चुकाओ। बाहर, पॉकेट के बाहर से पैसा लोन में मत लो। लोन लोगे तो सदा शोक से शोकामग्न रहोगे। तो बिकॉज असलम आजकल लोग घर ले लेते हैं, ईएमआई भरना होता है कितने साल के लिए, 15 साल 20 साल कभी कभी। तो धीरे धीरे भी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया और 5 साल बचा है। रहते हैं घर में लेकिन शांति से नहीं, रह नहीं पाते, कब लोन पूरा होगा। और पैसा कटता जाता है सैलरी से कट। आजकल सब लोन में, कार भी लोन में, हाँ, घर भी लोन में, सोफा भी लोन में, सब वॉशिंग मशीन लोन में, सब लोन में, जो पहना है लोन में, जो बैठता है लोन में, सब कुछ है लोन लोन लोन। लो चिल्लाता रहता है लोन में हमेशा। तो वो बोलता है कि वो पॉकेट में जो मिलता है तुमको उसके अंदर ही तुम खर्चा करो, ज़्यादा मत खर्चा करो। देखिए अगर आप दुकान में गए, एक सुनहरा रंग का सुंदर चप्पल देखा आपने, आपको पहनने की इच्छा थी, लेकिन आपका पाँव बड़ा है चप्पल छोटा है, क्या आप पाँव को काटोगे? नहीं। लेकिन अगर चप्पल बड़ा है पाँव छोटा है तब चप्पल को काट सकते हैं। और इसी तरह है हमारी, अगर हमारी पॉकेट छोटा है, कुछ इच्छा होता है बड़ी चीज़ खरीदने के लिए, नहीं खरीदो, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए योग्यता नहीं है खरीदने के लिए। जैसे स्कूल, छोटे बच्चे ट्राइसाइकिल में कहते हैं, करेक्ट ना? स्कूल के बच्चे बाइसाइकिल में जाते हैं, कॉलेज के बच्चे स्कूटर में जाते हैं, बाइक में। कंपनी जाने के बाद कोई मारुति सैंट्रो ले लेता है, कोई बड़ा सी वो बना, वो बेंज गाड़ी लेगा ऐसे। लेकिन अगर कॉलेज का बच्चा गाड़ी चाहता है, उसका मतलब लग्जरी, करेक्ट है ना? इस तरह कंपनी में अभी भी ज्वाइन किया है, वो लोन लेकर अगर बेंच गाड़ी खरीद रहा है तो मूर्ख है, करेक्ट है ना? हाँ? इस तरह लोगों का आजकल दिखाना की बहुत इच्छा के कारण लोन लेकर लोग खर्चा करते हैं, बाद में बहुत कसरत करना पड़ता है उनको। लाइफ, हमारे जीवन में बैलेंस उड़ जाता है कब? जब हम इम्प्रेसिंग गेम में घुस जाते हैं, दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं। इस दुनिया में हर एक के तकदीर में लिखा है, जितना दाने दाने पे लिखा है, हाँ, आपको जितना आप योग्य हो मिल ही जाएगा आपको। आप बोलेंगे भैया कैसा पता चलेगा हमको? देखिए, एक पंछी सुबह उठकर, हाँ, इधर से वो 1 किलोमीटर दूर उड़ती है, उसके लिए खाने के लिए कुछ फल मिल जाता है, खाती है, उठा के लेके आती है, बच्चों को खिलाती है, शांति से घोंसले में रहती है। इतना ही यत्न करना पड़ता है उनको। हमको भी 8 घंटा यत्न करते हैं ना, उसके अंदर जो पैसा मिलता है आपके तकदीर में वही लिखा है, तो उससे खर्चा चुकाना चाहिए। और अगर कोई 16 घंटा काम कर रहा है तो उस बाकी कमाता जो है ना, वो अलग अलग चीज़ों में मिट जाता है। आप देखेंगे जैसे एक व्यक्ति पुणे में उन दिनों में 45,000 कमाता था, बॉस ने बोला तुम 16 घंटा काम करो, अभी 14 घंटा कर रहे हो, अभी 14 घंटे को क्या कर दो, 2 घंटा ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हम आपको 45 को 50 करके देंगे, हम राउंड अप करके। घर में जाकर पूछा पत्नी को क्या करे, वो भी बोली ये तो राउंड नंबर अच्छा है, 50 है, हाँ, नो प्रॉब्लम, यस बोल दो। यस बोल दिया, अगले महीने से 50-50 आने लगा। लेकिन साथ साथ उनके इधर दुखने लगा, पेट दुखने लगा, कुछ अल्सर्स हो गया मुख में, पाचन नहीं हुआ ठीक तरह से। 16 घंटा काम कर रहा है बेचारा। डॉक्टर के पास गया, आयुर्वेदिक डॉक्टर। डॉक्टर बोले हर महीने आपको 5,000 खर्चा करना है। तो उसने कुछ, उसने कमाया कुछ, उसने एक्स्ट्रा, एक ही एक्स्ट्रा कमाया, दर्द कमाया, हाँ, दर्द ही हुआ उसको बस, हाँ? इस तरह आप देखेंगे ज़्यादा आपकी तकदीर में जो लिखा है उससे ज़्यादा आप कमाओगे, इधर उधर चला जाएगा और उसके साथ दुख मिलता है बस, हाँ? इसलिए 8-9 घंटा मैक्सिमम करते हैं, मिलता है।
हमें हमारे जीवन शैली को ऐसे आयोजन करना चाहिए। आप बोलेंगे अचानक हम कैसे आयोजन कर सकते हैं? आप भक्ति चालू कीजिए, माला कीजिए, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग नाम जप अच्छा करते हैं मैं उनको सद्बुद्धि भी मैं देता हूँ। हाँ, भगवान हमको बता देंगे कि क्या करने से तुम तृप्त हो। जैसे चाणक्य बोलता है कि 3 चीज के लिए तृप्त कभी मत हो जाओ। नाम जप करने के लिए ऐसा मत बोले कि 1 माला हो गया, ठीक है 1 माला था और 1 माला करो, है 2 माला कीजिए, अगर 2 कर रहे हैं तो 4 कीजिए। माला बढ़ाना, स्वाध्याय करना, गीता भागवत की स्वाध्याय जप, दान हो भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए कुछ दान देना ना, तो ये सब करना चाहिए भक्तों को। ये सब करने से आध्यात्मिक सुकृति का अकाउंट बढ़ता है आपका। भक्ति सुकृति का अकाउंट जो कभी भी मिटता नहीं वो। हाँ, जैसे भौतिक पुण्य भौतिक पाप मिट जाते हैं, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक पुण्य कभी नहीं मिटता। वो तो आपकी चित्त को शुद्धिकरण करता है। जैसे मैंने बताया आपको 20-30% शुद्धिकरण हो गया, वो आपके साथ, आप मन के साथ जाएगा अगले जन्म में और आगे बढ़ेंगे आप। हाँ, अभी इधर जो भी बैठे हैं आप सब लोग कुछ ना कुछ तो करके आए हो पूर्व जन्म में, हाँ? भक्ति करके आए हो आप, इसलिए आपको समझ में आ रहा है ये सब विषय, और आगे भी बढ़ोगे आप। इसी जन्म में भी अनेक लोग भगवत धाम लौट जाएंगे अगर आज गंभीरता से भक्ति किया तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में सरलता से उन्होंने समझाया ये सब चीज़ें। हाँ, मेरा विनती है आप सबसे, आज अक्षय तृतीया का दिन है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शपथ लीजिए अपने आप। जैसे मैं रोज प्रभुपाद की किताब 1 पृष्ठ पढ़ूंगी, हाँ? रोज हम भगवान के नाम 1 माला जपेंगे। 1 माला जपने के लिए आपको 10 मिनट लगता है, और प्रभुपाद की किताब की 1 पेज पढ़ने के लिए 5 मिनट लगता है आपको। तो कुल मिलाकर कितना है? 15 मिनट। कितने लोग में लगता है कि 15 मिनट बड़ी बात नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है, करेक्ट है ना? हाँ, तो ऐसे चालू कीजिए। अगर आपने अभी तक चालू नहीं किया है तो 15 मिनट से चालू कीजिए। आपको कुछ लाभ मिला तो और बढ़ा सकते हैं उसका टाइम बाद में, लेकिन आध्यात्मिक टाइम जो देते हैं भगवान को, इट्स इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, इसको, इससे आपको पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, आत्म तृप्ति मिलेगा, घर में एकदम सुंदर माहौल बन जाएगा, होम स्वीट होम हो जाएगा आपका, है? सुंदर घर हो जाएगा, क्योंकि सब घर वाले नम्रता से, सहिष्णुता, नम्रता, सरलता, ये सब अच्छे दिव्य गुण आ जाएंगे भक्तों में, पति पत्नी बच्चों में, एकदम घर एकदम शांति सुख से आप इस दुनिया में भी अपने परिवार चला सकते हो। अंतिम काल में हम वैकुंठ प्राप्ति हो सकता है ऐसे भक्तों को। तो बहुत समय ले लिया मैंने, कुछ 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, टाइम है? थोड़ा प्रश्न किसी को कोई प्रश्न है तो? उधर 2 हाथ ऊपर है, देखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। यहाँ आपने बताया जिन लोगों के पास पैसा है उन लोग ये लोन वगैरह लेते हैं। 3 बोल रहे हो जिन लोगों के पास पैसा है या सैलरी अकाउंट है या इनकम है उन लोग लोन लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द पुअर पीपल, जिन लोग जो लाते हैं वो ही मतलब उनका आधा खाना नहीं होता, तो वो सेविंग्स कैसे करेंगे? क्या भगवान इन्हीं मतलब इतना सा ही लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ क्यों है? करेक्ट करेक्ट। देखिए, हम हर एक इंसान अपने पास देखना चाहे कि मेरे पास क्या क्या क्षमता भगवान ने दिया। एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं गया था भोपाल में, है, ये एक व्यक्ति है उधर, उन्होंने रीडिंग रूम बनाया। रीडिंग रूम मालूम है आपको? हाँ, रीडिंग रूम करके वो दिन में 1 घंटा 2 घंटा विद्यार्थी आकर पढ़ते हैं उधर। वो इसमें एक क्यूबिकल होता है उसका, उसके लिए वो लोग चार्जेस भरते हैं ऐसे। तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग विद्यार्थी आते हैं उधर पढ़ने के लिए क्यूबिकल्स में, और एसी रूम है उसमें, नॉन एसी रूम है, हाँ, ऐसे क्यूबिकल्स हैं, ऐसे उन्होंने बनाया। तो उसमें से वो 80,000 कमा रहा है महीने में, 80,000, और उसको उधर जाना भी नहीं है, उधर वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, हाँ? ये कि किराए का प्रॉपर्टी है। वो बोला मुझे पुणे में अगर कोई आपके ब्रह्मचारी के स्टूडेंट्स कोई हो, विद्यार्थी जो कॉलेज का पढ़ाई होने के बाद नौकरी चाहिए उनको, मुझे बोले मैं आ जाऊंगा, उनको सेटअप करके दे दूंगा पुणे में। वो बैठे बैठे 80,000 कमा रहा है वो, हाँ? उसके पास एक ही लड़का है उधर उस भक्तिवेदांत रेड्डी रूम को चलाने के लिए, हाँ? बहुत सरल बिजनेस है वो, हाँ? इसी तरह है
दूसरा बिजनेस है, अगर कोई कॉलेज के निकट जाकर कुछ डब्बा प्रसादम चालू करेगा। डब्बा प्रसाद माना आपको, कॉलेज के बच्चों के लिए, कंपनी जाने वाले, आजकल अच्छे प्रसाद कुकिंग करके देने वाले नहीं है, हाँ? अगर कोई अच्छा भोजन बना सकता है, कुछ कुक्स को अपॉइंट करके चालू करेगा, तो वो हज़ारों लोग उससे लेंगे। ऐसे सरल सिंपल बिजनेस है वैसे। लेकिन आजकल क्या प्रॉब्लम है, अनेक लोग सोचते हैं कि उसमें प्रेस्टीज नहीं है उसमें, हाँ, उसमें प्रेस्टीज नहीं, लोग क्या सोचेंगे इस तरह के सिंपल बिजनेस हम करेंगे तो, ऐसे लोग डरते हैं। अभी उदाहरण के लिए, अभी आजकल बहुत लोग ट्यूशन्स करते हैं, करेक्ट है ना? अभी अमेरिका में आप डेमो देंगे ऑनलाइन में, अनेक लोग आपके डेमो देखेंगे, डेमो अच्छा हो गया तो आपको नौकरी दे देंगे। घर में बैठे बैठे कुछ लोग 60,000 70,000 कमा रहे हैं ट्यूशन के द्वारा, हाँ? उनको कहीं नहीं जाना होता, घर में 3 घंटे 4 घंटे दिन में काम करते हैं, उनको महीने में 60-70 हज़ार मिल जाता है उनको ऐसे। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारे पास टैलेंट है, और क्या इस तरह के कुछ काम धंधा करने से हम आसानी से कमा सकते हैं, हाँ? हर एक इंसान को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी जिस प्रोफेशन में आप रहते हो उसमें उसको भी चलाते रहो, साथ साथ आप ढूंढ निकालो कि दूसरे कुछ प्रोफेशन में मैं शिफ्ट हो सकता हूँ, हाँ? जिसमें इस तरह का ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो आसानी से हम कमा सके, हाँ? हर एक को ढूंढना चाहिए ऐसे, खास करके भक्तों को, क्योंकि उससे क्या होगा आपका। तो और एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक कंपनी में, कंप्यूटर कंपनी में काम करता था, एक आईटी कंपनी में। उसने क्या किया, उसके पिताजी के पास गांव में खेती था, अभी उधर ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू किया उसने। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वो जर्मनी बेच रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। बैंगलोर में जाता है, बैंगलोर में ये करते हैं, टेस्टिंग करते हैं ऑर्गेनिक, ये सही है क्या नहीं, तो उधर से वो जर्मनी जाता है, बहुत पैसा आना चालू हो गया उसको फार्म से। साथ साथ शहर में उसकी ज़मीन पड़ा था, उसने लोन लेकर 6 घर बनाया उधर, 3+3 ऐसे 2 टावर बनाया, तो उधर किराए में रखा, कॉलेज के बच्चों को रखा 11 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट में। अभी पूरा लोन वापस का लौटा दिया, अभी उधर से भी पैसा आ रहा है, फार्म से पैसा आ रहा है। अभी इसने आईटी कंपनी नौकरी छोड़ दिया इसने। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आजकल बहुत कसरत करते हैं लोग, लेकिन हम लोग ढूंढ निकलना चाहिए ऐसे कुछ सरल नौकरी हो हमारे टैलेंट के अनुसार। ऐसे 8 टैलेंट बताया गया है, इसको बोलते हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। आपको बताता हूँ क्या क्या है। स्लिम बिल एन, एस फॉर स्पेशल विजुअल, कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग लिंग्विस्टिक, अनेक, कितने लोग इधर 4 भाषा जानते हैं, कोई इधर 4 भाषा जानते हैं आप? हाँ, कुछ लोग 4-5 भाषा जानते हैं, वो लोग भाषाओं को पकड़ लेते हैं, लिंग्विस्टिक। आई फॉर इंटरपर्सनल, कुछ लोग पीपल पीपल हैं, लोगों के साथ अच्छी तरह बर्ताव कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर मार्केटिंग और सेल्स एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स, HR, that kind of job. SLIM, M for musical, और B for bodily kinesthetic। म्यूजिकल का मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, गाना इत्यादि, और B for bodily kinesthetic, स्पोर्ट्स में। I for इंट्रापर्सनल, फिलोसॉफिकल, वो लोग दार्शनिक होते हैं, वो लोग मोटिवेशनल स्पीकर इत्यादि करते हैं। एंड L फॉर लिंग्विस्टिक, सॉरी L फॉर लॉजिकल मैथमेटिकल, जो लोग मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग में जाते हैं, और N फॉर नेचुरलिस्टिक एंड एको फ्रेंडलीनेस, एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस। ऐसे 8 इंटेलिजेंसेस हैं। हम क्या करना चाहिए, ये सब भगवान बोलते हैं, मेरे तेज मम तेज अंश संभवम, भगवान बताते हैं मेरे तेज का एक अंश मात्र है, लेकिन हर एक जीव में मैंने एक एक अंश दिया हूँ। आप इधर बैठे हो, ज़रूर आपके अंदर ये एक नहीं तो 2 टैलेंट होगा इसका, 1 2 3 टैलेंट हो सकता है। आप ढूंढ निकालो और उस टैलेंट को वर्धन करो। जैसे मैं खुद बचपन से मुझे गीता के ऊपर रुचि था, फिलॉसफी पढ़ना, समझना, दूसरों को सिखाना समझाना। मेरे पिताजी को बोलता है हमें इंजीनियर नहीं बनना, हमको हमको इस तरह गीता पढ़ना है, सिखाना। लेकिन वो उनकी इंसिस्टेंस के कारण मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा, उसके बाद यही लाइन में आ गया, क्योंकि वहाँ के लिए स्वाभाविक था हमको, हाँ। इस तरह हम लोग, हर एक व्यक्ति अपने स्वाभाविक लाइन में आ जाएगा तो उस फील्ड में उसको आसान भी होगा और उसको कमाना भी आसान हो जाएगा, उसको समझना आपने, हाँ। तो आजकल ऐसा नहीं है, लोग क्या करते हैं, उनका टैलेंट अलग है लेकिन कमाने के लिए कुछ करते हैं। कोई केमिकल इंजीनियर बनता है, बनकर कंप्यूटर में बैठा है, कंप्यूटर के अंदर केमिकल डालेगा अंदर,
उधर जाकर क्या कर रहा है, क्योंकि उसको कमाना है, करेक्ट है ना, वो लाइन में नहीं जाएगा वो। तो इस तरह आजकल साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार लोग काम नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। सो आई वुड से दैट यू शुड आइडेंटिफाई योर साइकोफिजिकल नेचर। अनदर थिंग आई विल टेल यू, देखिए अभी शहर में भी कुछ एरियाज में महंगा है, करेक्ट है ना। अभी आईटी कंपनी के निकट आप जाइए, बहुत महंगा है सब कुछ, लेकिन अगर आप दूर रहेंगे गांव के निकट, उधर सस्ता है। कुछ लोग गांव जैसे स्थान में रहते हैं और कार में जाते हैं रोज अप डाउन, और देखते हैं कि उनको बचाव होता है, करेक्ट ना। लेकिन बाकी